بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشیل۔ ناظرین، گزشتہ شب لاہور میں پاکستان کی کریم جمع تھی، جن میں پاکستان کے سینئر مبصرین، صحافی اور تجزیہ کار جمع تھے، اور اس محفل میں غیر ملکی مہمان بھی شریک تھے، جن میں ترکیہ، ایران اور چین کے سفارتکار بھی شامل تھے۔ اس تقریب میں بہت اہم امور پر گفتگو ہوئی، اور کیا اس میں تجویز سامنے آئی، اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ آج گفتگو کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ ناظرین، لاہور میں سینئر صحافی، تجزیہ کار، کالم نگار اور عالمی امور کے ماہر سید محمد مہدی نے ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا۔ یہ افطار ڈنر سینئر صحافی مجیب الرحمن شامی اور الطاف حسن قریشی صاحب کو خصوصی طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز ملنے پر ان دو شخصیات کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ ناظرین، اس ڈنر میں ترکیہ کے قونصل جنرل ایمر اوزبے، ڈی جی خانہ فرہنگ ایران جعفر روناس اور چینی قونصل خانہ کے پولیٹیکل ہیڈ مسٹر ڈو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ اس تقریب میں مجیب الرحمن شامی کے ساتھ الطاف حسن قریشی صاحب، کیونکہ ان کے اعزاز میں یہ تقریب تھی، اس میں سہیل وڑائچ، سینئر صحافی پرویز بشیر، پروفیسر ڈاکٹر امان اللہ، ایڈیشنل سیکرٹری محسن عباس، طیب قریشی، پروفیسر ڈاکٹر امجد مگسی، گوہر علی، جوید نواز، صابر صادق سمیت دیگر سینئر صحافیوں اور تجزیہ کاروں اور پروفیسرز نے شرکت کی۔ ناظرین، اس میں سب سے پہلے تو جب ترکیہ کے کونسل وہاں پہ پہنچے تو شرکاء نے ان سے زلزلہ متاثرین کے حوالے سے اظہار تعزیت کیا، اور شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ وہ دکھ کی اس گھڑی میں اپنے ترک بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، ایران اور چین کے جو سفارتکار تھے انہوں نے بھی اظہار خیال کیا، اور اس پر ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ سب سے پہلے جو ایران کے ڈی جی خانہ فرہنگ تھے جعفر روناس، انہوں نے امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کی تمام شرکاء کو، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے دن سے مثالی ہیں، اور ہم ہمیشہ ایک مضبوط، کیونکہ اس میں تعلق میں بندھے ہوئے ہیں، تو ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد چین کے جو سفارتکار تھے مسٹر ڈو، انہوں نے رمضان المبارک اور عید کی پیشگی مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اس میں روزے رکھ رہے ہیں تمام احباب، اور جو اس نیکیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ہماری طرف سے انہیں مبارکباد۔ اور انہوں نے کہا کہ میں 15 دن پہلے ہی آپ تمام شرکاء کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، اس میں مختلف جو شرکاء تھے انہوں نے اظہار خیال کیا۔ سید محمد مہدی نے بڑی دلچسپ گفتگو کی اور پرمغز گفتگو تھی ان کی، انہوں نے بڑی زبردست تجاویز دیں۔ سید مہدی نے کہا کہ پاکستان، ایران، چین، ہم 3 ملک اس وقت موجود ہیں، ترکیہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے اس وقت، تو ہم 4 ملکوں کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو صاحب رائے ہیں، جن کا تجزیہ، جن کا تبصرہ لوگ دیکھتے اور پڑھتے ہیں، اور اس سے ایک رائے بنتی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہاں موجود تمام افراد اپنی اپنی حیثیت میں اہم ہیں، اور یہ ان کی طرف سے کوئی تجویز سامنے آتی ہے تو وہ یقیناً اہمیت رکھتی ہے، وہ وزارت خارجہ کے لیے بھی اہم ہے، حکومت کے لیے بھی اہم ہے، اور یہاں موجود ہمارے غیر ملکی جو مہمان ہیں ان کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے تجاویز دینی چاہیے تاکہ ہمارے جو غیر ملکی دوست یہاں موجود ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس پر مجیب الرحمن شامی اور سہیل وڑائچ نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ چین ایسا ہمارا دوست ہے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے سب سے بڑا جو یہ قدم اٹھایا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا دی ہے، اس سے مسلم امہ میں بالخصوص اور مشرق وسطیٰ میں بالعموم اچھے اثرات پڑیں گے۔ اور سہیل وڑائچ اور مجیب الرحمن شامی، الطاف حسن قریشی سمیت دیگر سینئر صحافیوں نے چینی سفارتکار مسٹر ڈو کو اس پر خراج تحسین پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ چین کا جو اقدام ہے، کوئی مسلمان ملک یہ نہیں کر سکا، لیکن چین نے یہ کر کے، یہ صلح کروا کر ایک بہت بڑی نیکی کی ہے۔ تو اس پر
पर उन्होंने खराज तहसीन पेश किया चीनी सफारतकारों को। सैयद मोहम्मद मेहदी ने इस मौके पर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हम 4 मुल्कों के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें अफसोस है कि हम हमसाए हैं, हमारी जो सरहदें मिलती हैं उसके बावजूद हम तिजारत में हमारा वो हुजम नहीं है जितना होना चाहिए। हमारे ताल्लुकात इतने गहरे हैं लेकिन हमारे तिजारती रवाबित जो हैं वो ऐसे नहीं है कि जिन पर फ़ख्र किया जा सके। तो उन्होंने इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ देते हुए कहा कि हम जो 4 मुल्क हैं जो जहाँ मौजूद हैं, अगर हम चाहें तो सिंगल करेंसी राइज हो सकती है। उससे ये होगा कि हमें एक दूसरे को अदायगियों में आसानी होगी। ईरान के साथ बिलखसूस हमारी तिजारत में सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो बैंकिंग सेक्टर का ना होना है। हमारा कोई बैंकिंग का निज़ाम ऐसा लिंकअप नहीं है आपस में कि हम एक दूसरे के साथ तिजारत कर सकें। चीन के साथ भी हमें तिजारत डॉलर में करनी पड़ रही है और बाकी मुल्कों के साथ भी ज़ाहिर है जब भी आलमी सतह पर कोई इकदाम होता है तो उसके हवाले से डॉलर इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने ये कहा कि हम अगर डॉलर की बजाय अपनी करेंसी को लोकल करेंसी बना लें और फिर वो इन 4 मुल्कों में जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं उसमें राइज कर दी जाए तो हमारा तिजारती हुजम कहीं का कहीं जा सकता है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, तमाम ममालिक चारों जो इस वक्त यहाँ मौजूद है चारों ममालिक के लिए मुफीद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हम बार्टर सिस्टम के तहत भी तिजारत शुरू करें तो उसके भी खातिर खा नताइज बरामद हो सकते हैं। सैयद मोहम्मद मेहदी ने सऊदी अरब और ईरान के हवाले से जो ताल्लुकात में बेहतरी आई है इस पर भी खराज तहसीन पेश किया, बिलखसूस चीन को और ईरानी जो वहाँ पर मौजूद थे DG खाना फरहंग जाफर रोनास को। और उन्होंने कहा कि यकीनन ये एक ऐसा इकदाम है और इसके लिए इन्हें आगे बढ़ना होगा। इसके लिए मोहम्मद मेहदी ने ये तजवीज़ पेश की कि शाह सलमान और आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ये 2 अपने मुल्क में असर व रसूख रखने वाली शख्सियात हैं और इनका बहुत अपना मुल्क में असर व रसूख है। तमाम इदारों से बालातर होकर इन 2 शख्सियात की बात मानी जाती है। तो इन 2 शख्सियात को मिलकर मुलाकात करनी चाहिए और फिर मिलकर एक लाहे अमल बनाना चाहिए, जिससे अगर इन 2 शख्सियात की मुलाकात हो जाती है तो इससे सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे और इस पर ख़ित्ते में बिलखसूस बड़ी मुस्बत तब्दीली आएगी। अब देखें कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी आने के साथ UAE के ताल्लुकात ऑटोमेटिकली ईरान के साथ बेहतर हो गए हैं और अब तो सफारत खाना भी खोल दिया गया है। तो ये असरात हैं जो अब यमन में और इराक़ में, शाम में और दीगर जो हमारे करीबी अरब ममालिक हैं इस खित्ते में मशरिक़ वस्ता में, उन्होंने भी ईरान के साथ ताल्लुकात बहाल करना शुरू कर दिए हैं। यानी सऊदी अरब की जो पोजीशन है अरबों में वो उसके हवाले से मुबशरीन ये कहते हैं कि जहाँ हाथी का पाँव वहाँ सब का पाँव। तो सऊदी अरब को मुस्लिम और अरब मुल्कों में हाथी की हैसियत हासिल है। तो जो इस तरफ सऊदी अरब का झुकाव होता है सारे मुल्क उसके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेते हैं। उसकी मिसाल ये चीन का है दौरा के जब चीनी सदर सऊदी अरब के दौरे पर गए थे तो वहाँ अरब ममालिक की जो तंजीम है खलीज ताउन कौंसल उसका भी इजलास हुआ था और उसमें चीनी सदर ने खिताब किया था और उसके बाद बहुत से अरब मुल्कों ने चीनी सदर के साथ मुआहदे भी किए और तल्लुकात के हवाले से भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। तो ये असरात थे कि सऊदी अरब के आगे बढ़ने से बहुत सारे अरब मुल्क भी उसी रास्ते पर चले। तो अब जब ईरान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात मुस्तहकम हो गए हैं तो इसमें मज़ीद अरब मुल्कों के ताल्लुकात भी ईरान के साथ बेहतर होंगे और उससे मुस्लिम दुनिया में एक अच्छी तब्दीली आएगी और मुआशी हवाले से हमारे बेहतरी की तवक्को की जा रही है। तो इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भी मुबशरीन ने वहाँ पे अपनी अपनी राय का इजहार किया। सबको ये अक्सरियत यहाँ इस जो महफिल थी इसमें शुरका की अक्सरियत का यही मौक़िफ़ था कि ईरान और सऊदी अरब के इस ताल्लुकात में पाकिस्तान को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। मुबशरीन ने कहा कि ईरान के और सऊदी अरब को करीब लाने के लिए पाकिस्तान ने भी पहले कोशिशें की, मियां नवाज शरीफ ने भी कोशिश की, इमरान खान ने ज़्यादा इस हवाले से किरदार भी अदा किया, वो दौरे भी किए, लेकिन वो नताइज सामने नहीं आ सके जो चीन ने हासिल कर ली हैं। तो इस हवाले से चीन का किरदार यकीनन लायक तहसीन है और उन्होंने कहा कि जिस तरह अब चीन मुल्कों को करीब कर रहा है इसी तरह यहाँ पर इस खित्ते में हमारे में एक करेंसी भी राइज करवा दी जाए ताकि इससे हमें एक दूसरे के साथ लेन देन में आसानी हो। और इस सूरत हाल के बाद नाज़रीन मुबशरीन की जो राय थी उसके बाद ये कहा जा सकता है कि खित्ते में जहाँ से अब अमरीका
निकल रहा है वहाँ से उसके साथ साथ डॉलर भी निकल रहा है, क्योंकि डॉलर की बजाय अगर मुकामी करेंसियों में लेन देन होता है तो फिर उस हवाले से डॉलर के लिए ये अच्छा शगुन नहीं है। क्योंकि चीन और रूस ऑलरेडी इस बात पर काम कर रहे हैं और उन्होंने इस बात पर ये यकीन दहानी करवाई है एक दूसरे को कि वो आइंदा अपना लेन देन जो है वो डॉलर में नहीं करेंगे। तो इस हवाले से हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के साथ साथ डॉलर भी दिखाई नहीं देगा। तो उससे ये होगा कि डॉलर जब यहाँ से मशरिक़ वस्ता से निकलेगा तो मुकामी करेंसी आने से हमारी मईशतों को इस्तेहकाम मिलेगा, हमारे माली मामलात बेहतर होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम अपनी करेंसी में वो करेंगे तो उसमें बेहतर अंदाज में कारोबार भी हो सकेगा और लेन देन भी आसान होगा। तो इस हवाले से यकीनन हुकूमतों को सोचना चाहिए। ये तो मुबशरीन और तज्ज़ियाकारों की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई है, तो इस हवाले से हम भी हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत तुर्किया, हुकूमत ईरान और हुकूमत चीन से यही मुतालबा करेंगे और उन्हें यही तजवीज़ देंगे कि एक मुकामी करेंसी राइज कर ली जाए, बेशक वो युआन हो, पाकिस्तानी रुपया हो या कोई नई करेंसी भी बनाई जा सकती है। तो इस हवाले से एक नई करेंसी राइज करके पाकिस्तान समेत ख़ित्ते के जो ममालिक हैं वो बाहमी तिजारत को फ़रोग़ दें। सात समंदर पार की बजाय अगर हम अपने हमसायों पर तवज्जो देंगे तो उससे बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।